Hi everyone, so I welcome you all in my tutorial videos, and today we are going to continue with where we left last class, that is theory of consumers behavior. Okay, so I hope every one of you is in proper concentration and you're going to enjoy this, trust me. We are going to learn very important concepts over here. So please ensure that whatever work you are doing, leave it aside and just pay attention where you are, which means like if you're watching my video, please pay your full attention on that. Okay, chalo, let us continue. So last class we stopped till law of DMU. Okay, so we were talking about law of diminishing marginal utility, but before that we had also talked about what is utility. Okay, then what are the concepts of utility, which means what is total utility, what is marginal utility, the relationship between total utility and marginal utility, and then we proceeded with law of diminishing marginal utility, which states that as more and more units of a commodity is consumed, the additional utility keeps on declining, right? So that was law of DMU, and then there were certain assumptions of law of DMU, like there should be continuity in consumption, there should be no change in the taste of the consumer. Okay, now do you remember last class I left you guys with a question and I told you that I'm going to explain it today. Okay, and that was about marginal utility of money. Okay, so today we are definitely going to talk about it, and like I told you, we are doing first cardinal utility. In cardinal utility, utility can be measured in utils. Okay, so there are two cases for which we are going to talk about. One is one commodity case and the other is two commodity case. Okay, so अब देखो, we are going to start with one commodity case, and over there only I am going to explain you what is meant by marginal utility of money. Now see, as the name suggests, one commodity case. One commodity case means what? We are consuming, assume that we are consuming only one commodity. Okay, so what do you need to assume? That you are consuming only one commodity. So here we are going to understand like how a consumer will make decision if he or she decides to purchase only one commodity. Okay, with the given income and with the given prices of the commodities. So now let us start. Now see, there are certain assumptions which we are going to study about. Okay, so before starting any cases, you know ego has lot of assumptions. So here also they started something with assumptions. Okay, so first let us understand what are the assumptions, and then I'll let you know how to analyze consumer is in equilibrium. Okay, now see, first assumption is consumer is rational. अब ऑब्वियसली कौन सा कंज्यूमर ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि पैसा भी दिया और बेवकूफ़ भी बना? वो तो बेवकूफ़ कंज्यूमर ही होगा, राइट? तो एक अगर अच्छा दिमाग वाला कंज्यूमर है तो वो तो रैशनली बिहेव करेगा ना. Now what do you mean by rational? Rational means you will always aim at maximizing your level of satisfaction. Okay, so that is the first assumption, consumer is rational. नेक्स्ट है इट मेक्स अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. अब ये अजम्पशन भी कितना ऑब्वियस है. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हो, उसके अंदर वन कमोडिटी केस कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है ना कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी आपको क्या बताता है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो कार्डिनल नंबर्स में. तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो ये बोलने का बात था कि इट अज्यूम्स कार्डिनल यूटिलिटी. ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स. लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स मतलब क्या मतलब है कि जैसे ही तुम एक कमोडिटी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहोगे, जो एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाएगा. ठीक है, विच मीन्स तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी घटते ही जाएगा जैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होगे. ठीक है, सो वो लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करता है. नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब अचानक से कंज्यूमर अमीर नहीं हो गया या गरीब नहीं हो गया. उसका दिया हुआ है कि देखो भाई वो अभी 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो उसके इनकम दिए हुए हैं. अब विद दैट गिवन इनकम वो कितना कंज्यूम करेगा, कितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा, वो अपने को डिसाइड करना है. ओके, सो कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन एंड इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट बोल रहा है कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज आर कांस्टेंट. नाउ सी, हियर यू आर अज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी ना.
सो इमेजिन करो आई एम अज्यूमिंग वन कमोडिटी, से मैं कंसिडर कर रही हूँ मे बी एक वाइट चॉकलेट, राइट। तो हम अज्यूम करें कि डार्क चॉकलेट का प्राइस एकदम भी चेंज नहीं हुआ हो, क्योंकि यू नो वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट सस्ता हो गया तो लोग डार्क चॉकलेट खरीदना शुरू कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि बाकी कमोडिटीज का प्राइस भी गिवन है एंड वो कांस्टेंट है। और लास्ट एग्जाम्पशन है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं हो रहा, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रही, वो जो चाहता है वो वही कंज्यूम कर रहा है। एंड वो अगर सपोज आज वाइट चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है तो थ्रू आउट वो वाइट चॉकलेट ही कंज्यूम करेगा, अचानक से बीच में नहीं हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं मेरे को डार्क चॉकलेट दे दो। इज नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विल रिमेन अनचेंज। और लास्ट इसका एक असम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी will remain constant. Now what do we mean by that? Marginal utility of money will remain constant. इसका तो चर्चा जैसे सलमान खान के राधे मूवी जैसा हो गया है ना, बार बार ये पढ़ रहे कि MU कांस्टेंट है, MUM कांस्टेंट है। भाई MUN है कौन जिसका इतना चर्चा हो रहा है? तो अब अपने को यही समझना है, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को MUM से डिनोट होता है, ठीक है। सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू rupee worth of a satisfaction. It is equal to rupee worth of a satisfaction, okay. So it is equal to rupee worth of a satisfaction. Now what is rupee worth of a satisfaction? It means that if a consumer, like what amount of satisfaction is a consumer expecting when he or she spends 1 rupee. Now see, you know पहले यूटिलिटी जैसे आई टोल्ड यू यूटिल्स में मेजर होता था, इसमें एक प्रॉब्लम था, इसमें ये प्रॉब्लम था कि आप लोगों की यूटिलिटी को कंपेयर कैसे कर रहे हो। जैसे अगर आज मैं बोल रही हूँ मेरे को ये मार्कर सपोज 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दिया, यू आर सेइंग, यू बीइंग अ स्टूडेंट इज सेइंग ये मेरे को 0 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिया, 0 यूटिल्स। तो मतलब हम लोग यूटिल्स के बेसिस पे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इमेजिन करो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स नहीं होता, ठीक है। इमेजिन करो सिर्फ किलोमीटर होता, तो बोलते हैं हम 10 किलोमीटर चलाए, हम बोलते हैं हम 6 किलोमीटर चलाए, तो क्या हम लोग एग्जैक्टली कंपेयर कर पाते? क्या उसको हम लोग एक कॉमन फॉर्म में कंपेयर कर पाते? बिकॉज दैट शुड बी इक्वल टू समथिंग ना, जिससे कंपैरिजन फैसिलिटेट होता। लाइक आज हम बोले कि तुम 6 किलोमीटर चलाया, हम 10, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा 6000 मीटर्स तुम चलाया, 10,000 मीटर्स हम चलाए, राइट। आई कैन से दैट, क्योंकि सिमिलरली इधर भी ऐसे हो रहा है कि पहले यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता था, फिर इन्होंने बोला कि यूटिलिटी को यूटिल्स में तो मेजर करो, बट साथ में वी कैन ऑल्सो मेजर यूटिलिटी इन अ वे कि एक इंसान कितना रुपया देने को रेडी है एक कमोडिटी खरीदने के लिए, ठीक है। कितना एक इंसान रेडी है कमोडिटी खरीदने के लिए पैसा देने को, वो भी तो उसके लिए यूटिलिटी हो सकता है। क्योंकि आज सपोज तुम एक आईफोन खरीदने के लिए रेडी हो 60,000 रुपीज देना, ठीक है। आईफोन का तो प्राइस है, आईफोन 11 इमेजिन करो 64,000, राइट, 64,000 है। तो अब अगर तुम 64,000 देने को रेडी हो, तो दैट इज द वर्थ, दैट इज द सेटिस्फैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स that you are expecting from that commodity कि हाँ मैं 64,000 दूंगी तो मेरे को उस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इधर बाद में डिसाइड किया गया कि यूटिलिटी को ना क्यों ना हम लोग इस तरीके से भी मेजर करें कि एक इंसान कितना देने को रेडी है वो कमोडिटी खरीदने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली सपोज अगर मैं रेडी हूँ 100 रुपया देने के लिए वो कमोडिटी को, तो ठीक है, तब इजी हो रहा है ना कि तुम 100 रुपया देने को रेडी हो, वो बोल रहा है, अगला बोल रहा है नहीं मैं 500 रुपया दूंगा, तो ये तो जस्टिफाइबल हो गया ना कि अच्छा
he is expecting ज़्यादा satisfaction and he would be getting ज़्यादा satisfaction because he is willing to spend more, right? So that is marginal utility of money. Like if you are spending 1 rupee, how much level of satisfaction you are expecting to get? That is what economists even thought, that instead of measuring, yes, you do measure utility in utils, but also assign a monetary value to it. So if I'm telling you, like, after spending 1 rupees, I'm expecting to get 4 utils of satisfaction. So this is MUM. ठीक है, कि 1 रुपया स्पेंड करने से मैं उम्मीद कर रही हूँ 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन. सो सपोज अगर तुम 10 रुपीज स्पेंड कर रहे हो तो तुमको कितना सेटिस्फैक्शन है? 40. अगर कोई इंसान 15 रुपया स्पेंड करना चाह रहा है तो उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 15 into 4 60, राइट? तो ऐसे करके क्यों ना हम लोग यूटिलिटी में भी पैसा घुसा दे. ठीक है, सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि 1 रुपया स्पेंड करके इंसान कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो हम लोग अभी तक क्या सीखे कि पहले यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करो, पहला चीज. उसके बाद एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर दो. ठीक है, बताओ कि तुम 1 रुपया स्पेंड कर रहा है तो तुम क्या सोच रहा है कि तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और तुम जितना रुपया कमोडिटी के लिए स्पेंड करने को रेडी हो उतना ही तुम्हारा सेटिस्फैक्शन है. तो ये ज़्यादा इजी हो गया, राइट? तो अब अपने ना इसको और सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जिससे तुम और ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे. ठीक है, सो MUM क्या हो गया? रुपी वर्थ ऑफ अ सेटिस्फैक्शन. सो इफ आई एम स्पेंडिंग 1 रुपया, आई एम एक्सपेक्टिंग 4 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन कमोडिटी केस क्या होता है. वन कमोडिटी केस को समझने के लिए इमेजिन करो कि MUM है, 1 रुपी है, 4 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है. ठीक है, अब प्राइस, सपोज तुम एक कमोडिटी है, सपोज चॉकलेट खरीदना चाह रहे हो, तो वो प्राइस है चॉकलेट का 4 रुपया. ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे, इधर वो कौन सा कमोडिटी कंज्यूम करना चाह रहा है? चॉकलेट. चॉकलेट एक ही कमोडिटी है, राइट? और वो कोई और कमोडिटी नहीं कंज्यूम कर रहा. तो सबसे पहले अपने लेते हैं यूनिट्स ऑफ चॉकलेट. फिर ये तो देखो, ये गाइस अपना स्टैंडर्ड है कि ये जो 1 रुपया स्पेंड करेगा उसको उससे 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये अब थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा. मतलब तुम 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट कंज्यूम करो या 2 करो या 3 करो या 4 करो, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है. ठीक है, सो सपोज इधर मैं ले रही हूँ यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स, इधर मैं ले रही हूँ MU ऑफ चॉकलेट इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और इधर हम लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज. इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखो, ये तो मेरे को पता है कि 1 रुपया स्पेंड करके 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा. अब देखो, यूनिट ऑफ चॉकलेट सपोज 1 2 3 4 5 6 है. ठीक है, अब 1 चॉकलेट तुमको इमेजिन करो सेटिस्फैक्शन दे रहा है 20 यूटिल्स का. ठीक है, नेक्स्ट तुमको दे रहा है 18 यूटिल्स, क्योंकि तुम जैसे चॉकलेट इंक्रीज करोगे देखना MUX डिक्रीज होते रहेगा, बिकॉज अगेन लॉ ऑफ DMU लाइक आई टोल्ड यू. तो फिर ये हो गया. थर्ड इमेजिन करो 16 दे रहा है, फोर्थ इमेजिन करो 10, ये देखो इमेजिन करो 0, ये -4. सो दिस इज हाउ DMU ऑपरेट्स ना. घटते जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, घटते घटते 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो गया. ठीक है, सो ये MUX दे दिया हमको. अब हमको ये MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालना है. अब ये कहाँ से आ गया भाई? अभी तो MUM की है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज रुपी वर्थ ऑफ अ सेटिस्फैक्शन, कि 1 रुपया इंसान स्पेंड करके कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको, ये वो अपने दिमाग में घुसा के रखा है. ठीक है, अब देखो हम लोग इस कॉलम में ये डिटरमाइन करने का कोशिश करेंगे कि वो कितना रुपया रेडी है स्पेंड करने को. देखो गाइस, वो स्पेंड तो प्राइस जितना है उतना ही करेगा ना. 4 रुपया है प्राइस, तो वो 4 रुपये ही तो स्पेंड करेगा. बट वो 4 रुपया स्पेंड करने के पहले वो ये तो सोचेगा ना कि भाई मैं कितना कमोडिटी खरीदूं कि मेरा इक्विलिब्रियम पे आए, मैं कितना कमोडिटी खरीदूं कि मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो. ठीक है, तो वो तभी होगा ना जब तुम जितना रुपया स्पेंड करना चाहते थे वो इक्वल टू जितना रुपया तुम एक्चुअली स्पेंड कर रहे हो. नहीं समझ में आया?
फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू बाय एन आईफोन, ठीक है, आई वॉज रेडी टू स्पेंड 64,000 फॉर इट, एंड मार्केट में मैं गई तो मार्केट में प्राइस भी 64,000 है। तो बताओ मेरे को खुशी नहीं होगा क्या? हम तो सातवें आसमान पे होंगे, अरे देखो हम जितना स्पेंड करना चाहते थे उतना ही प्राइस है, और आई एम हैप्पी, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, राइट? बट ये इमेजिन करो कि अगर तुम स्पेंड करना चाह रहे थे सिर्फ 50,000, बट तुम देखिए प्राइस 64,000 है, क्या तुम खरीद पाओगे? क्या तुम्हारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो पाएगा? तुम्हारे पॉकेट में तुम्हारा पॉकेट जवाब दे देगा ना, बोलेगा नहीं बेटा अभी रुक जाओ और 3 महीना रुक जाओ, पहले 14,000 और इकट्ठे कर लो, ठीक है, इतना देर में नया आईफोन आ जाएगा, है ना? तो वही हो रहा है कि MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको ये बता रहे हैं कि आप कितना रेडी हो स्पेंड करने को, गिवन कि आपको पता है आप 1 रुपया, आप 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन के लिए 1 रुपया आपको स्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि MU में 1 रुपी इक्वल टू 4 यूटिल्स है। तो गिवन दैट आपको ये पता है कि 1 रुपया मैं स्पेंड करूंगा तो मैं 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन पाऊंगा। तो अब 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन पाने के लिए एक बंदा कितना स्पेंड करने को रेडी होगा? सोचो, अगर 4 यूटिल का सेटिस्फैक्शन के लिए वो बंदा 1 रुपया स्पेंड कर रहा है, क्योंकि वो दिमाग में तो ये रखा है ना अपने, तो अगर वो 20 यूटिल स्पेंड करना चाहता है, 20 यूटिल्स लेना चाहता है, तो वो कितना रुपया होगा रेडी स्पेंड करने को? यूनिटरी मेथड 1/4 into 20 दैट इज 5, राइट? तो इधर वो 5 रुपया रेडी है स्पेंड करने को। अब 18 देखो, 18 में कितना रेडी होगा? 18 में जब उसको 18 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन चाहिए तो वो कितना रेडी होगा स्पेंड करने को? अगेन यूनिटरी मेथड कि 4 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है? So 18 utils will be what? 1/4 into 18, right? So 4.5. Similarly इधर थर्ड यूनिट के लिए वो कितना रुपया स्पेंड करने को रेडी होगा? 16/4. इधर चौथे के लिए 10 डिवाइड बाई 4 2.5. इधर तो 0 आ जाएगा, और इधर नेगेटिव में कोई स्पेंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है? सो दैट इज MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो ये कॉलम तुमको क्या बताया कि तुम कितना रेडी हो स्पेंड करने को, ठीक है? बट तुम स्पेंड एक्चुअली 4 रुपया करोगे, बट ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भाई एक मेंटालिटी होता है ना, कुछ खरीदने के पहले हम लोग सोचते हैं कि इतना हम लोग रेडी है इस कमोडिटी के लिए स्पेंड करने को, तो ये तुम वही सोचे हो कि हम इतना रेडी है। अब इंसान इक्विलिब्रियम पे कब होगा? सिंपल सा लॉजिक है, जब तुमको पता है कि तुम स्पेंड करने को इतना रेडी हो और जब उतना ही तुमको स्पेंड करना पड़ रहा है तो तुम सेटिस्फैक्शन में होगे, ऑब्वियस सा बात है, राइट? तो इधर हमको पता है प्राइस है 4 रुपया, सो आई हैव टू पे दिस, एंड नाउ आई कैन सी व्हेन आई एम कंज्यूमिंग थर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन आई एम कंज्यूमिंग व्हाट? थर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देन आई कैन सी कि MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी 4 है, मतलब ये हम स्पेंड करने को 4 रुपया रेडी है थर्ड यूनिट में, और इसी पॉइंट पे देखो मेरा प्राइस से इक्वल हो रहा है। ये सारे पॉइंट पे देखो तुम स्पेंड करने को ज्यादा रेडी हो, प्राइस उतनी नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट पे तुम सोचे थे, मतलब ये ऐसा हो गया कि तुम सोचे थे 70,000 का आईफोन आएगा, आ गया 64,000, तो तुम तो 64,000 ही स्पेंड करोगे ना, तुम थोड़े बोलोगे अरे भैया मैंने सोचा था 70,000 का आएगा, बट आप तो कोई 64 आए, छोड़िए रखिए ना, आप 70 रख लीजिए, ऐसा तो नहीं करोगे ना, स्पेंड तो 64 ही करोगे। तो तुम इक्विलिब्रियम पे तो तभी होगे जितना तुम स्पेंड करना चाहते हो इज इक्वल टू बहुत तुम सोच के आए थे। तो ये वाले पॉइंट पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे तुम ज्यादा सोचे थे, ठीक है, बट तुमको स्पेंड 4 रुपये करना पड़ रहा है। ये पॉइंट पे तुम देखो, तुम जितना सोचे थे तुम उतना ही स्पेंड कर रहे हो, और इस पॉइंट पे देखो तुम जितना सोचे थे उसके कंपैरिजन में तुम कम स्पेंड कर रहे हो। तुम सोचे थे कि यार ये 50 में आ जाएगा, बट आ रहा है 64, तो इधर तो तुम नहीं चाहोगे ना ऑपरेट होना, तो तुम किस पॉइंट पे ऑपरेट होना चाहोगे, या कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा? कंज्यूमर तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा जब वो थर्ड यूनिट ऑफ चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, और जहाँ वो जितना चाह रहा है स्पेंड करना उतना ही वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है? सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, ठीक है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर वन कमोडिटी केस क्या होता है?
it is equal to when MUX in terms of rupees, this is nothing but MU in terms of rupees, na? So when MUX in terms of rupees is equal to price of X, then a consumer will be in equilibrium. So this is my equilibrium condition. Okay, इसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर he is willing to spend more than what he is actually spending. उसके नीचे नहीं होगा because he is willing to spend less than what he is spending. ठीक है, so equilibrium point क्या होगा? Third unit of chocolate जहाँ MUX in terms of rupees equal to price of good X हो रहा है. ठीक है, so this is one commodity case का explanation. Next, you know ग्राफ बिना अधूरा है इको. ठीक है, तो obviously इसका एक कर्व भी है जो हम लोग ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इधर हम लोग प्लॉट करते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड हियर वी आर प्लॉटिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज. ओके, एंड प्राइस. मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड प्राइस. ठीक है, सो अब जैसे देखो मेरे को प्राइस तो कांस्टेंट है ना, प्राइस तो 4 है एंड दैट इज कांस्टेंट, राइट? तो प्राइस तो 4 है एंड तुम चाहे 1 चॉकलेट खाओ, 2 चॉकलेट खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, प्राइस तो वही का वही है. सो प्राइस लाइन क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. प्राइस लाइन क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, सो प्राइस लाइन ये है. अब मेरे को क्या प्लॉट करना है? मैं MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स प्लॉट करूंगी या MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज प्लॉट करूंगी? MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज प्लॉट करूंगी बिकॉज यूटिल्स को तो तुम प्राइस से इक्वेट नहीं कर सकते. यूनिट शुड बी सेम. दैट इज वाई तो मैंने बोला कि ये यूटिलिटी का लोचा था कि वो यूटिल्स में बोल रहा था. बट हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं, हम लोग तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, तो हम कैसे यूटिल्स में कंपेयर कर पाते प्राइस को? इसलिए ना रुपीस वाला कॉन्सेप्ट आया, इसलिए MUM पैदा हुआ था. ठीक है, ऐसा समझो. तो अब MU इन टर्म्स ऑफ रुपीस क्या होगा? देखो ये भी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते जा रहे हैं. कैन यू ऑब्जर्व दिस कि MU इन टर्म्स ऑफ रुपीस इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. वाई? बिकॉज सी, जैसे तुम चॉकलेट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तुमको पता है यूटिलिटी घटते जाएगा, तो उस हिसाब से तुम्हारा सेटिस्फैक्शन सिंस घटते जाएगा, तुम उतना रुपया भी देने को रेडी नहीं होगे. तो इसलिए MU इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी गिरते जा रहे हैं. ओके, तो अब MU इन टर्म्स ऑफ रुपीस प्लॉट करते हैं. सो ये 1 पे कितना है? 5. तो सपोज 5 है, तो मतलब ऐसे करके 2 पे 4.5 है, 3 पे ये है, 4 पे 2.5 एंड 5 पे तो 0 है और 6 में तो नेगेटिव है. तो MU का कर्व तो कुछ ऐसा जा रहा है ना, MU का कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, राइट? तो ये पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स हो रहा है. MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज को ऐसे भी लिख सकते हो, MUX रुपीज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, या MUR से भी डिनोट कर सकते हो. इट्स अप टू यू. यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम इक्वेट क्या किया. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. हियर वी कैन सी कि एक कंज्यूमर जितना स्पेंड करना चाहता था वो उतना ही स्पेंड कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम. एंड हियर वी कंप्लीट वन कमोडिटी केस. और एक चीज़ है, अपने कॉपी में प्लीज लिख लो कि MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज क्या चीज के लिए स्टैंड करता है. How much consumer is willing to spend on a commodity? How much consumer is willing to spend on a commodity? So that is MU in terms of rupee. कि वो कितना एक consumer ready है spend करने को, तो वो हो गया MU in terms of rupees. ठीक है guys? So here we complete our one commodity case. Remember equilibrium condition क्या था? जब MU in terms of rupees equal to price of good X होता है. ठीक है,
तो आई होप तुम लोग को वन कमोडिटी केस समझ में आ गया, एंड आई होप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो लास्ट टाइम से परेशान कर रहा था वो भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अपने जो नेक्स्ट कमोडिटी केस है, सेकंड कमोडिटी केस, दैट इज टू कमोडिटी केस, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड आई विल प्रोसीड फर्दर। ओके, सो आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एंड प्लीज कंटिन्यू विथ इट, बीच में मत छोड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग कुछ नहीं है, लॉजिकली सोचोगे तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।